यस एग्जैक्टली टीम मैक्सवेल्स की जानिब से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया जाता है और यहाँ पर चिकन डिनर अपने नाम किया जाएगा फॉर द सेकंड मैच। और जिस तरह से टीम खेल रही है हैरिस भाई, ऑब्वियसली दैट्स कमेंडेबल, तारीफ़ के काबिल है। टीम की जानिब से दूसरा बेशक, चिकन भी अपने नाम किया जाता है, बट अभी के लिए दूसरा नहीं, दूसरे मैच का पहला चिकन। ऑब्वियसली पिछले मैच में भी टीम ने बेहतरीन तरीके से खेला था, आई थिंक बेशक। सेकेंड स्पॉट पे आई थी, चिकन करते करते रह गई थी और इस मैच में चिकन ही कर जाते हैं। लास्ट मैच के बाद भी अगर हम रैंकिंग की बात करें तो टीम टॉप पे मौजूद थी और अभी के लिए बार काफ़ी रेज हो चुके हैं, आगे 2 ही मैच रहने वाले हैं। सो इस सबको प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। And hundreds of hours of time. EasyClick is the ultimate tool that you need to run your business. It does everything from marketing to payment collection to scheduling. We even have AI built in to help you work in your business faster. If you need a better way to run your business, try EasyClick. Planning your next big sporting event in Middle East? Stop juggling vendors. Sportainment is your all-in-one partner for production, streaming, and digital delivery across the Middle East. We combine cinematic broadcasting, live streaming, and content creation with seamless execution powered by top-tier crews and cutting-edge tech. But we don't stop there. We support your entire event journey with pay-per-view infrastructure, CRM, and fan engagement tools. AI-driven analytics, mobile games, and blockchain-based rewards, all designed to scale your reach and deepen fan connection. We track player stats, deliver live scores, and keep audiences engaged from kickoff to final whistle. Need sponsors? We've got you covered. From attracting partners to amplifying visibility and boosting your bottom line. At the heart of it all is the Sportainment app, your command center for live coverage, fan interaction, and performance insights. Whether it's a local tournament or a global showcase, our tech, our talent, and our creativity bring your sporting event to life. Ready to level up? Visit sportainment.live and book your call today. Let's build your next event, the Sportainment way. How many software subscriptions are you paying for to run your business? You probably have something to send invoices from, something to book calls and meetings from, something to send marketing emails from. Or if you don't, you likely are doing everything manually. In both cases, you are wasting thousands of dollars and hundreds of hours. Assalamu alaikum दोस्तों, welcome back to this Titan Clash powered by Esportainment, presented by
easy busy solution and Prime Vision Studio supported by Gozo Academy. मैं हूं आपका कास्टर स्टार हारिस, मेरे साथ रहेंगी लूफी। लूफी, आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं पिछले गेम को लेके। व्हाट यू थिंक कि आज के दिन की क्वालिफिकेशन लिस्ट के अंदर किसका नाम जगह आता हुआ नजर आएगा? कोई नाम बताएंगे? ऑब्वियसली हम सबको मालूम है टीम मैक्स होगी, टीम एफएल होगी, टीम आई फील जीएलबी होगी। बट अभी के लिए हम स्टैट्स की जानब जाएंगे। पिछले मैच के मैक्स जोकर विद 3 एलिमिनेशंस, मैक्स इन्वेडर 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स, मैक्स चीफ 4 एलिमिनेशन अपने नाम कर जाते हैं और 1 एलिमिनेशन है मैक्स इंग्लिश के पास। टोटल ऑफ 12 किल्स ये टीम कर जाती है विद चिकन डिनर एज वेल। तो 22 पॉइंट्स आ गए हैं इस टीम के पास। अगर डैमेज की बात की जाए तो 1254 का डैमेज दिया जाता है जोकर की जानिब से। मुझे लगता है ये इनके पिछले मैच का भी ऐड हो गया। खैर जोक्स असाइड, जोकर ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। हारिस भाई एक वर्ड यूज़ करते हैं हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स कभी कभी, लाइक जैसे वो मुझे आके बोलते हैं ना तो वो कहते हैं चस आ गई लूफी, चस आ गई। सो आई डोंट नो व्हाट दिस दैट रियली मीन्स, बट जोकर चस आ गई। आई डोंट नो व्हाट बिल्कुल। दैट मीन्स। ये इसका मतलब ये है कि यार कि बेहतरीन खेला है आप, बेहतरीन खेला है और Okay. बेहतरीन काम किया आप। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि बिलाल भाई Yes. क्या ही प्रेजेंटेशन है आपकी स्ट्रीम की, वो चीज़ चस आ गई। बिलाल भाई एमवीपी Okay. आपने देख के चस चस आ आ गई। गई। भाई 3 एलिमिनेशन हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर और आई स्टिल वो कह सकते हैं नाम हमें कुछ देर के अंदर पता चल जाएगा जब टॉप 5 प्लेयर्स की फहरिस्त हमारे सामने आई आएगी। थिंक डैमेज 3 आप देख सकते एलिमिनेशन हैं विद जोकर एलिमिनेशन, के थे। जोकर, बट लुक एट द डैमेज, यस लुक एट एमवीपी, डैमेज यार। यस। भाई यही तो मैं कह रही हूँ, 12,000 चस आ गई जोकर। ये आवाज मेरे ख्याल से वो आपकी इस जस्ट आ की क्लिप को निकाल के ना वो अपनी नई रील बनाने वाला है। मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। बट अभी के लिए यस मिस्टर जोकर, मैक्स जोकर with 3 elimination, we have crazy with 8 elimination, amazing, and then we have iconic with the 2, we have रहमान with 3, we have टोमा है with the 2 elimination। डैमेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जोकर का डैमेज आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट उसी के साथ अगर बात की जाए मैक्सिमम किल्स हमें क्रेजी के हाथ में देखने को मिलते हैं 750 डैमेज के साथ। उसी के साथ अगर बात की जाए आइकॉनिक के पास अच्छा डैमेज है बट किल्स वही 2। और वही अगर बात की जाए इन 5 प्लेयर्स के पास एक तगड़ा डैमेज है, किल्स की कमी थोड़ी रहने वाली है कुछ प्लेयर्स के पास। बट सबसे ज़्यादा दुख फिलहाल डैमेज देख के जोकर को ही हो रहा होगा कि यार कि एड्डा डैमेज एड्डे किल, मतलब वो चीज़ होगी है फिलहाल के लिए। और यस मैक्स प्लेड वेरी वेल, पूरी टीम ने काफ़ी तगड़ा खेला और कहीं ना कहीं ये डैमेज देने वाला काम जो है ये हमें जोकर की तरफ से देखने को मिला। बट कहीं ना कहीं असिस्ट जो है वो उनकी टीम को ही मिल रहे होंगे। मैच समरी की बात करते हैं जहां पर हमें एलिमिनेशंस देखने को मिलते हैं 56, नॉक्स 60, वी हैव द लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन 385 मीटर्स। हीलिंग्स की बात कीजिए 10,639, थ्रोएबल्स, ग्रेनेड्स, मोलोटॉव, स्मोक्स 125, एयर ड्रॉप्स 3। भाई साहब यहाँ पर इस मैदान के अंदर 3 ड्रॉप लूटे गए। असिस्ट 30 और जबकि अगर बात की जाए व्हीकल एलिमिनेशन वो है बिल्कुल शून्य, 0। कोई भी एलिमिनेशन हमें शून्य। व्हीकल से देखने को नहीं मिला। बिल्कुल लास्ट मैच पे कोई भी प्लेयर व्हीकल के अंदर एलिमिनेट नहीं हुआ था। बट एलिमिनेशंस तो हुई थी ऑब्वियसली। बट अभी के लिए सेकंड मैच की मैच रैंकिंग्स की बात की जाए तो 22 पॉइंट्स के साथ मैक्सवेल्स चिकन डिनर भी अपना नाम कर जाती है, टॉप पे मौजूद है। ये ओवरऑल आई थिंक रैंकिंग है, नहीं ओवरऑल नहीं है, इस मैच की सेकंड मैच की रैंकिंग है। टीम गन लॉर्ड्स की बात की जाए विद 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स अपने नाम कर जाते हैं 16, 7 बैंडेट्स 9 पॉइंट्स अपने नाम कर जाती है। टीम FIT 7 पॉइंट्स कर जाएंगे अपने नाम। टीम BTX 6 पॉइंट्स, टीम लिक्विड 5 के हैं 5 पॉइंट्स, टीम SSP अपराइजिंग 5 पॉइंट्स वो भी अपना नाम कर जाते हैं। जबकि टीम D मैन विद 5 पॉइंट्स ऑन 8th स्पॉट। अभी के लिए इस मैच में तो टॉप 8 टीम्स ये हैं। बट देखते हैं कि ओवरऑल पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ओवरऑल हमारे टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट अगर हमारे सामने आती है तो उसमें कौन कौन से प्लेयर्स के नाम होते हैं। हमारे सामने फिलहाल ओवरऑल Okay. रैंकिंग आ चुकी है और स्टैंडिंग्स आ चुकी है 39 इन टोटल पॉइंट्स इन द हैंड ऑफ मैक्सेबल। मैं गन लॉर्ड से काफ़ी मतलब कि काफ़ी अमेज्ड हूँ कि इन लड़कों ने कोई चिकन नहीं निकाला बट काफ़ी खूबसूरत खेला है। एलिमिनेशंस Consistently खेला 21, है हारिस भाई। यस। और मतलब कि द वे Yes. दीज गाइज आर एक्चुअली प्लेइंग लाइक ए प्रो।
और जो यस। स्टेडीली काफ़ी सेंसिबल हमने एक फाइट के अंदर जहाँ पर एसएसपी को इन्होंने एलिमिनेट किया, उधर हम फाइट से पहले ही मैंने बोल दिया यार कि ये काफ़ी सेंसिबल खेल रहे हैं, काफ़ी सोच समझ के खेल रहे हैं और वहाँ पर कहीं न कहीं इनको देख के इनकी गेम से अंदाज़ा भी होता है कि यार कि प्लेइंग लाइक ए प्रो। फेयरलेस की बात की जाए यहाँ पर एफएल इज़ प्लेइंग वेल एज़ वेल। ये बस ये मीरामार कुछ अच्छा नहीं गया है इनका बट फिर भी 20 पॉइंट इन टोटल एफएल के पास भी रहने वाले हैं। 7 बैंडेज विद 16 पॉइंट्स, डीमन विद 12, लिक्विड 5 विद 9, टीम बीटीएक्स 9 एंड नेमलेस 8 और इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल चुका है। डबल डिजिट आपको सिर्फ अभी फिलहाल टॉप 5 के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बाकी सबके पास बहुत कम पॉइंट्स हैं। सेकंड पेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 7 क्योंकि एफवाईटी के पास रहने वाले हैं। ये 7 पॉइंट्स चलते हैं 11वें प्लेस तक जहां पर आपको रीजन ई स्पोर्ट्स भी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर बात की जाए फोर थीव्स, पहले मैच के अंदर ही जादू चला, दूसरे मैच के अंदर सिर्फ कोई अच्छा कोई सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। बट लेट्स सी कि अगले मैच के अंदर लूफी क्या हमें देखने को मिलता है, क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। वो इस मैच जो मैच आने वाला है, जो कि मैच खेला जाएगा सैनोक की वादियों के अंदर और सैनोक के इस काफ़ी फास्ट पेस मैप के अंदर। तो देखते हैं कि सैनोक के अंदर टीम्स किस तरह खेलती हुई नज़र आती हैं। ये वो मैप है जहाँ पर आपको बहुत सारी फाइट्स, थर्ड पार्टीज़ और फुल एक्शन पैक गेम प्ले देखने को मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ई-स्पोर्ट्स के ऊपर और जहाँ पर फ्लाइट पाथ की बात कीजिए लूफी आपके सामने। बिल्कुल, थर्ड मैच सैनो का फ्लाइट पाथ हमारी नज़रों के सामने आ चुका है। यहाँ पर हारिस भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप किस टीम को इस मैच के लिए सपोर्ट करेंगे? बिकॉज़ ऑब्वियसली हमें वो टीम्स टॉप 8 टीम्स चाहिए और जो टीम्स सेकंड पेज पे थी ऑब्वियसली अगर वो इस मैच में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है, फास्ट पेस मैच होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्किल पॉइंट्स बटोर सकते हैं। इफ़ यू हैव द स्किल्स सो आप कोशिश कर सकते हैं कि अपना जो नंबर है वो ऊपर लेके आए। अगर यहाँ पर अच्छे किल्स के साथ टॉप पर आया जाता है तो बॉटम टीम्स भी अपने आप को क्वालिफिकेशन की रेस में ला सकती है। ऑब्वियसली इसके बाद आप प्लेऑफ्स खेलने जाएंगे, वहाँ पे फिर आपको और मज़ीद टीम्स ऐसी मिलेंगी जो आपको टक्कर देने के लिए मौजूद होंगी। सो लेट्स सी कि कौन सी टीम यहाँ पे चिकन करेगी। बट मॉर्गनाइज से कैंप अल्फ़ा की जानब जाता हुआ ये फ़्लाइट पाथ इतना दिक्कतें नहीं पैदा करेगा टीम्स के लिए, बिकॉज टीम्स ग्लाइड करके जा सकती हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव ड्रॉप्स और कोशिश की जाएगी टीम्स की जानब से कि ड्रॉप क्लैशेस को अवॉइड किया जाए। अभी के लिए ड्रॉप क्लैशेस एज सच बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट कुछ ही देर में हम देखेंगे कि फ़ाइट्स होंगी। जो आइलैंड्स हैं आई थिंक ब्रावो आइलैंड, उसके ऊपर मुझे चार्ली आइलैंड पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि फ़ाइट्स होने के चांसेस हैं, बट अभी इम्कान के है। लिए नहीं लग रहा है। लेकिन सर्कल 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 जा चुका है टुवर्ड्स द चार्ली आइलैंड हारिस भाई। बिल्कुल यही एरिया है जहाँ पर हमें आगे कुछ फाइट्स देखने को मिलेंगी। सारी टीमों की रोटेशंस इसी एरिया के गिर्दोनवां में आपको देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पर अभी के लिए यूएनएस के हाथ में ग्रेनेड, ये ग्रेनेड नेवर बैक के लिए कुछ कहानी चेंज तब्दीलियां कर सकता है। बट नेवर बैक नोटिस दैट के प्लेयर यहाँ पर आने वाला है। शॉर्ट गन्स दोनों के पास रहेंगी, दोनों की तरफ शॉर्ट गन्स चलती हुई नजर आती है। बट नेवर बैक का एक प्लेयर जो कि नॉक हो जाएगा। उसी की तरह आने के बाद की जाए माफिया, दिस माफिया नोज दैट के प्लेयर यहाँ पर रहने वाला है और जैसे ही बाहर आते हैं नॉक किया जाता है उनकी जानिब से और बैक एंड से एक अच्छा कवर है यहाँ पर उस प्लेयर को भी काफी डैमेज कर देगा। टीम नेवर बैक थोड़ा सा मुश्किलात के अंदर रहने वाली है, बट माफिया को रिवाइव करना है एज सून एज पॉसिबल, बट नहीं कर पाते। लास्ट एचपी बिल्कुल सामने ही इनके पैनिक दम तोड़ देंगे। माम्बा इज हियर, माम्बा विद 2 elimination, फ्रैगर विद 1 एंड वार्नर विद 1 elimination। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आंखों के सामने माफिया का यूं चले जाना दुख से कम नहीं होगा यूएनएस के लिए। आई थिंक द प्लेयर ने was को माफिया केओ माफिया आई डोंट नो, बट खैर माफिया प्लेयर के लिए एक यस थोड़ी सी एक सेटबैक की सिचुएशन है। बट यहाँ पर ये टूर्नामेंट आपके लिए प्रेजेंट किया गया है बाय ई स्पोर्ट्सटेनमेंट और इसके स्पॉन्सर्स आपकी नज़रों के सामने कोसो एकेडमी, ई स्पोर्ट्सटेनमेंट, इजी बीजी, प्राइम विजन, आई फील सही नाम ले रही हूँ, प्राइम विजन स्टूडियो, ये तीनों हैं वो नाम जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। बट अभी के लिए मैक्स की टीम एफएल के सामने आ जाएगी। द कन्वेंशनल राइवल्स जो मैंने ज़बरदस्ती बना दिए हैं फॉर दिस क्वालिफायर्स राउंड, उनका आपस में थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने देखा कि
फाइट चलती है, एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाता है जो कि टोमा रहने वाले भी के लिए प्रेशर बिल्ड हो सकता है, बट प्रेशर नहीं लेना है। टीम के पास अच्छे पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स हैं। अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंटली खेला जाए और कुछ किल पॉइंट्स बटोरे जाए तो टीम अच्छी पोजीशन में है, टॉप 8 में अभी भी आ सकती है। लास्ट मैच में भी आपको बेहतरीन तरीके से ही परफॉर्म करना है, बट अभी के लिए टीम मैक्स थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहती है, अपनी एक छाप छोड़ना चाहती है। इन्वेडर की जानिब से कुछ टैग्स दिए जाते हैं, बट स्प्रिंटर मोड ऑन करेंगे, बैक साइड पे जाया जाएगा उनकी जानिब से, और एक अच्छा मूव भी है, एक अच्छा डिसीजन भी है उनकी जानिब से। और अभी के लिए हारिस भाई, मैं आपको फिर से थोड़ा सा, जब हम ब्रेक पे गए थे मैं देख रही थी जाके, सो उसमें आप एक और भी चीज़ है कि न्यूज़ भी मैं देख रही थी कि न्यूज़ भी आ रही थी। सो आई रियली वांट टू नो कि क्या हम भी इसमें अपने कुछ क्योंकि उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए थे, न्यूज़ में आर्टिकल्स थे, एंड उसमें ई स्पोर्ट्स के बूम के ऊपर एक आर्टिकल मैंने देखा, थोड़ा सा ऊपर से ही मैंने देखा, खोल के अभी मैं नहीं देख पाई, बट इट इज़ अ गुड थिंग कि आप तो इस तरह के आर्टिकल्स, अगर किसी को रीडिंग का शौक़ है तो वो जाके आर्टिकल्स भी पढ़ सकता है। मैं पढ़ती हूँ पर्सनली, सो आप लोग भी जाके ज़रूर पढ़ सकते हैं। सो इस ऐप को एक्सप्लोर ज़रूर करें। मैं भी साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखती जा रही हूँ। एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं जो मेरे माइंड में आ रही थी, बहुत सारे लोग होते हैं वो हमारे पास आते हैं स्पॉन्सर्स के लिए कि हमें स्पॉन्सर चाहिए ये वो, तो हम उनसे यही बात सबसे पहले पूछते हैं, आपके स्टैट्स क्या हैं, आपने क्या क्या क्वालिफाई किया। तो यहाँ पर अगर आप प्रोफाइल बनाते तो आप वहाँ पे एक नुमाया आपकी प्रोफाइल बन सकती है कि आपकी ये स्टैट्स हैं और आपने यहाँ यहाँ खेला है, एक ऑथेंटिक सोर्स बन सकता है आपके लिए। सो इन चीज़ों को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए टीम जीएल की फाइट बनते हुए विद द टीम, ये क्या कर रहे हैं प्लेयर, ये ओ ग्लिच भाई, था, ये मैंने क्या देखा, व्हाट जस्ट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। बिल्कुल बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ ये क्या हुआ, बट यस जिस तरह लूफ़ी का ऐप के बारे में बता रही थी, तो ये एक ऐप ऐसी है जहाँ पर आपको अपने फेवरेट प्लेयर्स जो हैं इसी ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग एप्लीकेशंस के ऊपर अपने फेवरेट प्लेयर्स को ढूंढना छोड़ दो, सब कुछ इसी ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बट यस, अभी के लिए अगर आगे बात की जाए, यहाँ पर टीम्स हमारे सामने रहने वाली हैं, मैक्सेबल एंड एफएल। जो कि मैक्सेबल की बात की जाए तो यहाँ पर दिस टाइम अराउंड 2 प्लेयर्स उनके नॉक हो चुके हैं और अब सिचुएशन थोड़ी सी और मुश्किल होती नजर आएगी। बट अभी के लिए अगर बात की जाए, फाइट जीएल के ऊपर भी काफ़ी मुश्किलात बनते हुए नजर आ रही हैं। जीएल ऑलरेडी अपना एक प्लेयर आइकॉनिक लूज कर चुकी थी, एंड नाउ सेकंड वन इज गोज डाउन। क्रेजी एंड सैफ वंस अगेन, ये दो डेडली डुओ फिर से लाइव रहने वाले हैं। तो देखते हैं कि एनएस के बॉयज जो हैं जीएल के ऊपर किस तरह हावी होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी के लिए मुश्किलात इनके ऊपर बनते हुए दिखाई दे रही हैं। 2 ही प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हुए नज़र आए पिछले 2 मैचेस के अंदर, बट इस मैच के अंदर थोड़ी-सी मुश्किलात और बनते हुए नज़र आ रही है। नूबा नूबो, जो भी इनका नाम इस तरह प्रोनाउंस किया जाए, बट वो यहाँ पर रिवाइव हासिल नूब कर लेंगे। 2v2 आइलैंड, आई सिचुएशन, बिलीव इट्स नूब। ओके नूब। और यहाँ पर मेरे ख्याल से वो जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं उन्होंने वो डालने की कोशिश की और साइलेंट नहीं हुए। बट दूसरे पर सैफ की बात की जाए, क्लोजेस करेंगे और इस टीम को टेक डाउन कर देते हैं और अपने नाम के ऊपर उनको उसी तरह पछाड़ा जाता है। टीम जीएल वंस अगेन विद 4 एलिमिनेशन स्टिल अलाइव, और देखते हैं वो कितने दूर तक ये सफर करते हुए नजर आते हैं। बट ओ भाई साहब, शॉटगन कनेक्शन मैक्स के ऊपर होती है और अब सिचुएशन एफएल वंस अगेन वो एक अर्ली एग्जिट लेके जाते हैं, बट उनके पास 20 पॉइंट रहने वाले हैं, एक अच्छे पॉइंट्स हैं उनके पास, बट एक एग्रेसिव मूव थी उनकी जानिब से। 4 पॉइंट्स वंस अगेन मैक्सेबल्स के पास रहेंगे बिना किसी नुकसान के। टीम मैक्स वंस अगेन ये फाइट विन करती है और कहीं ना कहीं और मोटिवेटेड हो चुकी होगी आफ्टर दिस फाइट। सर्कल कहाँ पे जाने वाला है कुछ देर के अंदर अंदाजा होगा। माइट बी सर्कल, आई पॉसिबल थिंक इट विल गो गो इनसाइड, टुवर्ड्स द आइलैंड। यस, बनता ही उधर है लूफी। बिल्कुल। मैं बच्चे को भी बुला के जिसने नहीं, खेली नहीं होता पबजी, ऑब्वियसली मैं उसको भी बता दूंगा, वो भी कहेगा ये आ ही जाएगा। नो, इट कैन गो टुवर्ड्स वाटर साइड एज वेल, बट मतलब ज़्यादा आइलैंड की तरफ जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये था गलत ना समझा ओके, कीजिए, मैं आधी बात बोल दूं तो गैस किया कीजिए कि जाहिर है वो क्या कहना चाह रही, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा पानी की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मेरा कहने का मकसद है नहीं, ज़्यादा पानी की जानिब नहीं जाएगा ख़वातीनो हज़रात, ज़्यादा लैंड की तरफ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली सर्कल की शिफ्ट्स हम इसी तरह से जज करते हैं। बट फिर भी सर्कल जिस तरह से बना है, कुछ ना कुछ फेवर तो नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ हिस्सा पानी का भी उसमें हमें दिखाई दे रहा था। अभी के लिए टीम अनस्टॉपेबल की बात की जाए तो फिर से उनको फुल स्टॉप
लगाने की कोशिश की जा रही है एक टीम की जानिब से, बट फुल स्टॉप लगा एक टीम को, FLRB। थोड़ा सा दुख भी हुआ मुझे कि टीम कोई भी पॉइंट अपना नाम नहीं कर पाती और एलिमिनेट हो जाती। अब टीम को अगले मैच में परफॉर्म करना ही है। अगर बाकी की नीचे की टीम्स अब डबल डिजिट्स में आ जाती है तो टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, और इस प्रेशर को ज़्यादा ऑब्वियसली लेना नहीं है, बट लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड, सो आपको टॉप 8 में ही आना है, आप जितने भी पॉइंट से क्वालिफाई करें। बट चिकन करके मैच को थ्रो मत कीजिएगा, अगले मैच को ऑब्वियसली नहीं होगा, बट ऐसा हो भी सकता है कि कोई और अगर टीम बेहतरीन तरीके से बाकी की परफॉर्म कर जाती है तो थोड़ी सी दिक्कतें बन सकती हैं। अभी के लिए 6 स्पॉट पे देखा जाए तो BTX मौजूद है विद 10 पॉइंट्स, उनका अब डबल डिजिट हो चुका है। NL की बात की जाए विद 10 पॉइंट्स, वो भी यहाँ पे देखी जा सकती है, बट वो एलिमिनेट हो चुकी है टीम। लिक्विड 5 की बात की जाए तो यहाँ पे अभी तक के लिए उनके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है, बट पूरे 4 खिलाड़ियों के साथ इंटैक्ट नज़र आ रही है। 4 थीव्स जूनियर की बात की जाए तो वो 9th स्पॉट पे मौजूद है विद 8 पॉइंट्स टोटल पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में अब शिफ्टिंग थोड़ी थोड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी, बट यहाँ पे टीम मैक्स की फाइट इनिशिएट हो चुकी है विद द टीम अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल नाम तो दूसरी टीम का है, बट फॉर नाउ टीम मैक्सवेल इज अनस्टॉपेबल। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मैक्सवेल इज प्लेइंग वेरी एग्रेसिव। शेफ यहाँ पर जो है चीफ यहाँ पर जो है वो नो किल्स कंप्लीट हो चुके हैं। यस, आई और थिंक चीफ ये तीन वही प्लेस वाले चीफ हैं जो T20 वो में भी खेलते थे। चीफ एक मैंने नेम देखा है पहले भी, आई थिंक मैंने ये चीफ नेम कहीं और किसी और टीम में भी देखा है। यस, आई थिंक ये वो आरबी क्यूट में बॉय देखा बिलाल जो है शायद। ना, पहले इनका नाम वो था क्यूट बॉय बिलाल, और अब ये ओके, इनका अब नाम चीफ है। बट अभी के लिए वापस जाते हैं यहाँ पर जोकर एंड इस प्लेयर को देखते हैं कि किस तरह ये टीम जो है विद 3 मैन किस तरह खेलते हुए दिखाई देती है। बट व्हाट यू थिंक अबाउट इट कि भी अभी प्ले जोन का डैमेज जो है उनको कितना एग्रेसिव और लेके गाड़ी पड़ी हुई है यार, गाड़ी पड़ी है अभी तो इजी स्टेज पीजी। 2 यहाँ है पर यार। रोटेशन यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकती है। यस, इतना डैमेज नहीं मिलने वाला, बट प्ले जोन के अंदर रहना, प्ले जोन के अंदर रह के खेलना, वो कहीं ना कहीं आपको चिकन कहीं दिलवा सकता है। आउट ऑफ द प्ले जोन काफी डैमेज, और यही सर्कल कुछ देर के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। किस साइड पे जाएगा ये हमें थोड़ी देर के अंदर अंदाजा हो जाएगा। बट अभी के लिए अगर बात की जाए टीम गन लॉर्ड विद 2 मैन 4 एलिमिनेशन, ये देखते हैं कि किस तरह खेलते हुए जाती है। रोइंस को प्रेफर करता है, एंड इस नॉर्थ ईस्ट एरिया इस टाइम के ऊपर काफ़ी जगमगाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इस सर्कल की अगर बात की जाए काफ़ी ज़बरदस्त, ये सैनो के इस एरिया की बात करूँ तो साउथ वेस्ट का ये एरिया बहुत बहुत हार्ड टू प्ले है मेरे ख्याल से। काफ़ी ओपन एरिया है इसके अंदर। यस यस, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत डिफ़िकल्ट एरिया बिकॉज बहुत ओपन हो जाता है। बट अभी के लिए अगर देखा जाए तो पायनान में फ़ाइट बन चुकी है बिटवीन द 2 टीम्स, 4 थीव्स वर्सेस मैक्स वो टीम जो कि टॉप पे मौजूद है। एंड 4 थीव्स के प्लेयर्स ने भी हमें काफ़ी महसूस कराया। यहाँ पे प्लेयर जोकर जैसे ही ऊपर की जानब जाएंगे, आई डोंट नो हाउ जोकर मिस्ड जोकर, बट यहाँ पर जोकर मिस हो जाते हैं, बच जाते हैं, पीछे की जानब चला जाएंगे। बट इसी दौरान टीम SSP यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। एक प्लेयर को नॉक करने में कामयाब हो चुके हैं। नेट कुक किया जाएगा, गोट की जानब से फेंका भी जाएगा। ऐसा कनेक्शन नहीं आते, बट अब कनेक्शन निकल के आएगी। यहाँ पे आई थिंक प्लेयर को नॉक करने में कामयाब हो जाएंगे। मैक्स इंग्लिश है वो खिलाड़ी, मोलोटोव का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। आकिब की जानब से अभी के लिए फिर से नेट फेंका जाएगा, दोनों ही प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। टीम मैक्सवेल्स टुवर्ड्स द लॉबी विद 6 एलिमिनेशंस बाय द टीम 4 थीव्स। आई थिंक दिस टीम इज़ अमेजिंग। 4 थीव्स की बात कर रही हूँ, बेहतरीन तरीके से खेलती है और इस बार 4 किल्स भी अपने नाम कर जाती है। सो हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स। 6 किल्स हैं टोटल इस टीम के पास, तो 11 का नंबर आ चुका है फॉर नाउ। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए इन 4 चोरों के बारे में तो इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का गेम का मुज़ाहरा अभी तक के लिए कर लिया। बट अगर बात की जाए टीम लिक्विड 5, ये वो नाम है जिनके पास 2 प्लेयर्स रहते हैं, 1 एलिमिनेशन है। प्ले जोन का डैमेज आई डोंट नो व्हाई, क्या सीन सिनेरियोज हैं वो यहाँ पर हर टीम लेते हुए दिखाई दे रही है। हर टीम तो नहीं खैर से कह सकते, 4 टीमें आपको दिख रही हैं। हारिस भाई होता है, यस बिल्कुल, वो अब दोबारा से होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वही हील बैटल कुछ हमें वो भी चीज़ देखने को मिल जाती है। एक पुरानी याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। बट अब उसके साथ अगर बात की जाए यूएनएस के ऊपर, यहाँ पर भी टीम का एक तगड़ा स्प्रे। द टीम GL
हैव ओनली 1 प्लेयर लेफ्ट। 6 एलिमिनेशन के खाते में हैं। वीटी की बात करें तो यहाँ पर वीटी को एक अच्छी गेम की ज़रूरत है। इस अच्छी गेम के साथ देखते हैं कि किस तरह वो आगे बढ़ते हैं, किस तरह वहाँ पर भी चिकन डिनर की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि चिकन डिनर इज़ वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर दिस टीम। शहीर की बात की जाए, किल्स की बात की जाए तो यहाँ पर उनके पास फ़िलहाल के लिए 2 किल्स रहने वाले हैं। टोटल 5 पॉइंट्स वो हासिल कर चुके हैं और एक लंबा तवील सफ़र बाकी है। कि अभी ये है तीसरी गेम, इसके बाद लास्ट गेम खेली जाएगी और इन्हीं 2 गेमों के अंदर बीटी ने कुछ कर गुज़रना है, कुछ करना पड़ेगा उनको। अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए कुछ यहाँ पर खेलना पड़ेगा। बीटी इज़ ए गुड टीम बट सर्कल सेंट्रलाइज वंस शिफ्ट, अगेन यस। भाई साहब वंस अगेन ऑन द रूइंस एरिया। इस एरिया के अंदर की बात की जाए, रूइंस के अंदर ऑलरेडी हमें एक टीम देखने को मिली है, दिस FYT। और जो भी टीम यहाँ पर इनके पास आना चाहेगी, थोड़ी-सी मुश्किलात उसके लिए ज़रूर होंगी, क्योंकि ऑलरेडी होल्ड अप एक अच्छी जगह के ऊपर होल्ड अप उन्होंने बनाया हुआ है अपना। तो देखते हैं कि FYT कितनी देर तक इस एरिया को होल्ड करेगी और कितना एक कहते हैं ना कितना मुफीद साबित होता है रूइंस इस टीम FYT के लिए। बिल्कुल, रुइंस का जो एरिया है इन्होंने होल्ड किया हुआ है। आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा देर होल्ड करना भी मुश्किल होता है। जैसे पुश आते हुए दिखते हैं, पहले के लिए यहाँ पे टीम्स एलिमिनेट हो जाती है, बट अभी के लिए पुश आएगा कहीं और। टीम मौजूद है यहाँ पे, वाइब ट्राइब उनके ऊपर पुश आता है एक टीम का, जो कि आई थिंक VLR के नाम से अभी के लिए मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में नाम मालूम हो जाएगा। 2 प्लेयर्स उनके नॉक डाउन कर दिया जाएंगे। हाथ में DBS मौजूद है, बट दूसरे प्लेयर के पास भी DBS है। मसब के को काफ़ी कंफ्यूज किया जाता है, दोनों जानब से घेरा जाए towards the lobby with 1 elimination team। TRZ आर टीम्स अभी के लिए हमारी नज़रों के सामने। टीम GL ने काफ़ी ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया है अभी के लिए। अगर देखा जाए तो 6 किल्स हैं टीम के पास, बट एक ही खिलाड़ी मौजूद रहने वाला है। जहाँ पे वो मौजूद है, वो सर्कल का एरिया तो है, बट सामने की जानिब एक पूरी टीम मौजूद है। एंड आई थिंक जिस तरह से भी यहाँ पे फाइट हुई है, कुछ उन्होंने यहाँ पे विटनेस ज़रूर किया होगा। वो इसके वो क्या कहते हैं हारिस भाई, गवाह है, आँखों वाले गवाह हैं। सो खैर वो है यहाँ पर, उन्होंने देखा ज़रूर होगा। बट अभी के लिए टीम BTX अगेंस्ट से फाइट होती है। ओपन में पकड़ा जाएगा प्लेयर्स को। आपने जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये बहुत ओपन एरिया है, ओपन में प्लेयर्स पकड़े भी जा रहे हैं, एलिमिनेट भी हो रहे हैं बारी बारी करके। BTX की टीम सफ़र करते हुए देखी जा सकती है। सफ़र SUFFER वाला सफ़र। यहाँ पे GL एलिमिनेट हो जाएगी। ओबियसली एक ही खिलाड़ी पे मौजूद थी ये टीम। 6 एलिमिनेशंस के साथ उनको भी पकड़ा जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिसके बाद वी आर डाउन टू टॉप 7 टीम्स फॉर दिस मैच। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर की बात कीजिए, कुछ ऐसे नाम जो कि पिछले 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए, वो यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसमें से एक नाम 7 बैंडिट का भी रहता है और वो यहाँ पर कोई भी नुकसान आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। और इसी के साथ की बात की FYT वंस अगेन, वो भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने एक अच्छे पॉइंट्स हासिल करने हैं। और अभी के लिए बात की जाए, डीमन इज हीलिंग अप, स्मैक्सी नॉक रहने वाले हैं। हंसी जो है उनको रिवाइव भी करना पड़ेगा उनको रिवाइव, वरना कुछ मुश्किलात और बनते हुए नजर आएंगी। प्ले जोन डैमेज अब तेज करना स्टार्ट कर चुका, बिल्कुल सामने ही उनके अपने ही साथी की मौत हो जाती है। और जाते जाते वो इनको कुछ फर्स्ट एड जरूर दे के जाएंगे, जो कि उनको ज़रूरत भी रहने वाली होंगी। बट अब दूसरे पे बात की जाए FYT, जहाँ पर रूइंस का एरिया काफ़ी देर तक सर्कल के अंदर रहने वाला था, अब वो सर्कल में नहीं रहेगा। एंड फाइनली टीम FYT इस एरिया को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। FYT के पास 1 किल आ चुका है और जबकि उनको और भी किल्स की बहुत ज़रूरत होगी। अगर वो एक पहले पेज के ऊपर अपने आप को बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ के कुछ स्किल्स भी उठाने पड़ेंगे। 40 की गोड की बात की जाए, जो पहले मैच के अंदर जिसने 1v4 विद पिस्टल आपको करते हुए दिखाई दिया, देखते हैं कि अब ये टीम किस तरह खेलते हुए दिखाई देती है, इस मैच के अंदर किस तरह परफॉर्म करते हुए जाती है। और इसी दौरान टीम GL भाई साहब वो GL तो 9 फिनिश कंप्लीट हो चुकी है, बट ग्लैडिएटर कोई ऐसा का नाम आया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस इज GL, बट ग्लैडिएटर कुछ यहाँ पर नो, नॉक GL जरूर इज करते हुए दिखाई। एलिमिनेट। यस, GL इज एलिमिनेटेड। बट अगर 7 बैंडिट की बात की जाए, कहीं ना कहीं मुझे फेवरेट यहाँ पर 3 नाम देखने को मिल रहे हैं, VT, FYT एंड 7 बैंडिट। तो देखते हैं कि ये जो मैप है वो किस तरफ करवट लेता है।
लेट्स सी, कुछ टीम्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ बन के आएगा, कुछ के लिए बुरी न्यूज़ भी बन सकता है ऑब्वियसली। जिस तरह से अर्ली एग्जिट्स भी कुछ हमने देखे हैं। टीम यूएनएस के पास, अनस्टॉपेबल के पास मुझे 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो 7 पॉइंट्स ये भी टीम ले जाती है। बट अभी के लिए अगर टॉप 8 टीम्स की बात की जाए तो फोर थीव्स, नॉर्थ राइज जूनियर विद 11 पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इस टीम ने परफॉर्म किया, दैट तारीफ़ के काबिल, ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से टीम ने खेला है इस मैच में। बट फिर भी एलिमिनेशन के दहाने पर ही ये टीम रहने वाली है, बिकॉज एनएल अर्ली एग्जिट हो गया था। अगर नेक्स्ट मैच ये टीम अच्छा खेल जाती है, थोड़ी सी मुश्किलें बन सकती है उनके लिए भी। बाकी टीम्स की अगर बात की जाए तो सर्कल का शिफ्ट आ चुका है, 6th स्टेज है ये। थोड़ी देर में नेक्स्ट स्टेज भी हमें देखने को मिल सकती है, मिलेगी ऑब्वियसली। 7th स्टेज पे हम चले जाएंगे। बट एलिमिनेशंस का जो अभी के लिए खाता है वो थोड़ा सा थम सा गया, थोड़ा सा फायर की आवाज़ हमें आ रहे हैं, लेकिन एज सच कोई एलिमिनेशंस हमें अभी के लिए देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेट को किया जाएगा एमएस के मसब की जानिब से, जो कि वाइब ट्राइब की जानिब से खेल रहे हैं, फेंका भी जाएगा, बस एज सच कोई कनेक्शन निकल के नहीं आती है। सामने जो टीम मौजूद है वो लिक्विड 5 की रहने वाली है। लिक्विड 5 के पास 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, 13 पॉइंट्स भी हैं इस टीम के पास। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी हो जाएगी बाय द टीम 4 थीव्स। प्लेयर को पकड़ा जाएगा, समी उनका नाम है। लिक्विड 5 के एलिमिनेट करने में भी कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद टीम 4 थीव्स के पास अभी के लिए 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स मौजूद हैं। बट टीम लिक्विड 5 एलिमिनेट हो जाएगी विद 3 किल्स। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ जिस टीम के साथ उम्मीदें नज़र आ रही थी, वो टीम यहाँ पर भी नॉक फिनिश कंप्लीट हो गई है। और अभी की बात की जाए तो 4 नाम हमारे सामने रहते हैं, 7 बैडेड, 4 थीव्स, वीटी एंड एफवाईटी। देखते हैं कि कौन सा नाम है जो यहाँ पर चिकन की तरह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर अभी के लिए की बात की जाए, जहाँ पर 4 थीव्स बिल्कुल सामने रहेंगे। और इस आमने सामने की फाइट के अंदर 7 बैंडेड देखते हैं किस तरह यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आती है। उनके पास एक अच्छा एरिया ज़रूर रहने वाला है। और यहाँ पर जितने की बात कीजिए, जितना ओपन ग्राउंड है लूफी, उतने ही यहाँ पर स्टोन कवर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेस जाएंगे यहाँ पर एफआईटी की जानिब से ऑन द साइड ऑफ 7 बैंडिट। 7 बैंडिट के बॉयज कुछ नॉक्स भी हो चुके हैं, उनके ऊपर लाइबिलिटी है, रिवाइव पॉसिबल हो जाएगा इजीली। बट सर्कल जो पुश कर रहा है वो इनके लिए काफ़ी मुश्किलात बनाता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही सेकंड के अंदर प्ले जोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और उस चालू होते ही टीम्स के लिए जा जा मुश्किलात और बनते हुए दिखाई देंगी। और अभी के लिए बात की जाए 4T के गोट अब ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक अच्छा कनेक्शन टीम वाईटी के वीटी के लिए यहाँ पर मुश्किलात और बनाते हुए नजर आएगा। बट उसी के साथ अगर बात की जाए, यस यू कैन सी दैट यहाँ पर एक ग्रेनेड कनेक्शन निकालता है एंड गोट वो बन जाएगा जो भाईजान इस टीम को चिकन डिनर दिला सकता है। 4 थ्राइव्स कह रहा हूँ, 4 थीव्स यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद चिकन डिनर लेके जा सकती थी। बट उसी के साथ अगर बात की जाए, लुक एट दिस जोकर बट ओ भाई साहब, आई एम आकिब का एक ग्रेनेड टीम 7 बैंडिट के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी दौरान अगर बात की जाए, इन दोनों की फाइट के मसले जो चल रहे हैं, उस मसले का फायदा उठा रही है एफआईटी विद बैड एडवांटेज। कहीं ना कहीं चिकन डिनर की मसले मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो कह सकते हैं आप, वो यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दे रही है मैक्सिमल एफआईटी की जानिब। मैक्सिमल अच्छा, ओके। ओके, थोड़ा सा जो क्रैक करने की नाकाम कोशिश की जाती है मेरी जानिब से, बट उसको पकड़ा नहीं जाता है हारिस भाई की जानिब से। बट यहाँ पर पकड़ने की कोशिश की जाएगी थॉर के फिन, जो कि 7 बैंडेड के खिलाड़ी हैं, 2 प्लेयर्स को। एंड आई थिंक वो दोनों ही खिलाड़ियों को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर रैम्बो की जानिब से खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया जाता है, जिसके बाद में डाउन टू टॉप 2 टीम्स बनाओ। 7 बैंडेड वर्सेस एफवाईटी। 7 बैंडेड के पास 2 खिलाड़ी हैं, जबकि एफवाईटी की बात की जाए तो उनके पास पूरे के पूरे 4 खिलाड़ी अभी के लिए मौजूद है। बट एक प्लेयर यहाँ पर नॉकडाउन हो जाएंगे, शाइन उनका नाम है। शाइन को आउटशाइन किया जाएगा, बट थॉर को भी पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद 1v3 की सिचुएशन अपने प्लेयर को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी एफआईटी की जानिब से। रैम्बो की कंधों के ऊपर भारी जिम्मेदारी, क्या ये 1v3 पुल करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि थोड़ी देर में 1v4 में कन्वर्ट होने वाला। हील करने की उनकी जानिब से की जाती है कोशिश, बैक साइड पर मौजूद है, पीछे की जानिब जाएंगे, यहाँ पर प्लेयर एलिमिनेट कर देंगे, जिसके बाद छीना जाएगा चिकन डिनर टीम की जानिब से। और जो टीम चिकन कर गई है वो है एफआईटी। ऑब्वियसली उनके पास एडवांटेज था, थोड़ा सा मैन एडवांटेज, सो कंग्रेचुलेशंस टू दैम।